It is such a pleasure to attend this program because it has brought back the memories of my younger days when I was an active participant in all these debate competitions, elocution contests, essay writing competitions, right from the primary school. And these youngsters, they have, I'm very impressed, they have presented themselves very, presented their views, articulated what they feel, how Bihar should be in future. Lekin, you would like me to continue in English or you would like me to speak in Hindi? As you feel comfortable. As you feel comfortable. Okay. No, I'm comfortable with both of them. Hindi. Hindi will be better. Hindi, sir. That is why, but because all of them have spoken in English, and possibly the competition was in English language. So let me make few remarks in English, and then I will switch over to English. The famous philosopher, because one thing almost everybody, the underlying sentiment was that our politics is largely responsible for keeping us where we are. And someone said that because the politicians are not educated, etc., etc. So a famous philosopher, Galileo, he was discussing this subject, and a friend of his said that politicians are always over-occupied, they are too busy, and they hardly have any time to read good books. Galileo said, I do understand it, their compulsions, but I feel that those who do not read good books, they don't deserve to be in public life, not just in politics. Everywhere, you need to update yourself. And I cannot agree more with Mihika. You are there. Okay. All the points which have been made about the lack of investment, banks' deposits are more, and the loans which banks give, they are much lesser. Cheyenne has talked about tourism. Mihika, Diksha had talked about politics. But as I said earlier, the politicians do not come from Mars. Now the politicians are the product of this society itself. You can't expect everyone to be statesman-like. People do things which they can sell to people. Or rather, the individual politicians are more interested in things which can be easily sold to people. So here the question arises, what the people demand? That will determine the demand. The market principle is that the demand will determine the supply. What kind of demand is there? And people will come with products which satisfy those demands. And then Mihika has talked about Mr. Manas, Anshika. They all have dwelt on this subject. I personally feel that education is the key. Without education, none of these problems which we see can be addressed. And today the situation may be
gloomy. But Bihar has a great legacy. Out of the 4 great universities of India, 5 universities of India, ancient universities. And why I am saying university? Because they attracted students from countries, from other countries. So it gave them a universal character. Out of 4 or 5 of them, 3 were located in Bihar. So Bihar has this great legacy. I feel, and not just that, Bihar has not only benefited from those great institutions, but Bihar actually has given lot to whole of India. Mostly the knowledge tradition belonged to Bihar, and that inspired the whole of country. Now, another thing I would like to say is that when any people who are facing a situation which is result of their decline and fall, then we may try to identify many reasons for that. But essentially, underlying all the symptoms is a disease which has destroyed democracies and even non-democratic countries in the past, and causes of that disease are mostly moral and political and constitutional. In order to cure it, we must recognize them as such. India, even before medieval times, India was identified as a knowledge civilization, culture of knowledge. It does not really sound very good when anybody, individual or group, indulges in praising oneself. But when the recognition comes from outside the society, then it can be considered as genuine and authentic. भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, ये हमेशा से ज्ञान की संस्कृति रही है, और हम खुद अपने मुंह से तारीफ करें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब बाहर से उसको स्वीकार किया जाता है तो हम उसको ये मान सकते हैं कि ये वास्तविकता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में यूरोप का पुनर्जागरण शुरू हुआ, और उस वक्त जिसे हम मिडिल ईस्ट जिन्हें आज हम अरब देश कहते हैं, वहाँ पे उस समय बगदाद जो था, जो उमवियों की राजधानी तो दमिश्क था, लेकिन अब्बासियों की राजधानी बगदाद था। और बगदाद एक लंबे समय तक दुनिया में लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर और 11वीं शताब्दी तक बगदाद दुनिया में ज्ञान विद्या का केंद्र बना हुआ था। और 9वीं 10वीं और 11वीं शताब्दी में उस परंपरा से संबंध रखने वाले इतिहासकारों ने जो दुनिया का इतिहास लिखा है, पहले नंबर पे तबरी हैं, दूसरे नंबर पे इब्ने कसीर हैं, इब्ने असीर हैं, इब्ने रुश्द हैं, इब्ने खल्दून हैं। आप किसी को भी उठाकर देखिए, 9-9, 10-10 खंडों में, वॉल्यूम्स में वो इतिहास है। और उसमें जो पहला खंड है, अगर आप उसको पढ़िए तो पहले चैप्टर में उन्होंने पूरे दुनिया के इतिहास की एक समरी दी, संक्षिप्त में उसका वर्णन किया। और उनमें से हर एक ने ये कहा है
कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान की सभ्यता अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती है। चीन की सभ्यता अपनी हुनरमंदी और शासकों के प्रति वफादारी के लिए जानी जाती है। तुर्कों की सभ्यता अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। और रोमन सभ्यता अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता के लिए जानी जाती है। और फिर वो 5वीं सभ्यता को कहते हैं, दुनिया में भारत अकेली सभ्यता है जो ज्ञान विज्ञान के संवर्धन के लिए जानी जाती है। हर एक ने कहा, और ये अकेले उन्होंने नहीं कहा, उनसे पहले आपने भी सुना होगा, चूँकि अल्लामा इकबाल तो हमारे ही देश के थे, उनकी मशहूर नज़्म है जिस हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, लाइन है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। तो हदीस ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मस्जिद में बैठे हुए थे और यकायक कहते हैं, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूँ। तो ये हमने नहीं कहा अपने बारे में, ये वो बात। और ध्यान रखिएगा, ये वो समय है जब यूरोप, अभी लोग अभी उनका पुनर्जागरण बस शुरू ही हुआ था। वो यूरोप तो एक ज़माने तक ठंड के कारण मकान नहीं थे तो खो में रहते थे। तो और उस वक्त मिडिल ईस्ट में वो बगदाद ज्ञान विज्ञान का केंद्र बना हुआ था, तब उन्होंने हमारे लिए ये कहा। तो भारत का जीनियस क्या है? हर व्यक्ति का और हर समाज का अपनी एक विशेषता होती है। भारत की अगर कोई विशेषता है तो वो है ज्ञान, वो है विज्ञान। हमने अपनी सभ्यता की जो यात्रा शुरू की वो इस घोषणा के साथ शुरू की, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो सच्चाई है वो एक है, लेकिन उस सच्चाई को जानने और पहचानने की कोशिश करने वाले उसको अलग अलग तरह से बयान करते हैं। आज 5000 साल के बाद दुनिया उसी तरफ आ रही है जिस तरफ भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जिसकी तरफ इशारा किया था। क्योंकि बीच का पीरियड अगर आप देखिए 1948 तक, तो दुनिया की हर तहजीब, हर सभ्यता काहे से डिफाइन होती थी, परिभाषित होती थी? हमारा रंग गोरा है, हम औरों से बेहतर। मानव समता की कल्पना ही नहीं थी सभ्यताओं को परिभाषित करने में। हम इस भाषा के बोलने वाले हैं, हम दूसरी भाषा बोलने वालों से हम सुपीरियर हैं, हम बेहतर। हमारा इबादत का तरीका ये है, हम अकेले वो हैं जो फेथफुल हैं, जो ईमान वाले, बाकी सब जो हैं वो जहन्नम जाने वाले। ये दुनिया की लगभग हर सभ्यता का यही दृष्टिकोण था। पहली बार 1948 में दुनिया ने ये स्वीकार किया कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, उसी से निकलते हैं सारे मानव अधिकार, चाहे समता हो, चाहे न्याय हो, चाहे बंधुत्व हो, सब उससे निकलते हैं। काहे से? मानव प्रतिष्ठा। 1948 में यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसने इसको स्वीकार किया और लगभग सभी देशों ने उस पर दस्तखत कर दिए। लेकिन आज से 5000 साल पहले भारत ने क्या कहा दुनिया को? प्रतिष्ठा की बात नहीं की, कहा मानव के अंदर दिव्यता है, डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड। अगर मैं आपके अंदर ये मान लूँगा कि आपके अंदर दिव्यता है, और
शंकराचार्य ने वही 4 महावाक्य लेके वेदों से वही दिए। और जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ ध्यान आता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन कुरान की एक आयत भी आती, और वो है कि फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। और जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि जब मैं इस मिट्टी के पुतले को ठीक से मुतनासिब तरीके से बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, फिर तुम इसके आगे झुक जाना इसके सम्मान में। तो क्या बताया गया वेदों में 5000 साल पहले? क्या कहा जा रहा है कि वो परमात्मा आत्मा की शक्ल में, परमात्मा जीव आत्मा की शक्ल में हम में से हर एक के अंदर मौजूद। अगर मैं ये मान लूँगा कि परमात्मा आपके अंदर जीवात्मा के रूप में मौजूद है, और मैं आपको ये मान लूँगा कि आपके अंदर डिवाइन एलिमेंट है, क्या उसके बाद ये मुमकिन रह जाएगा कि मैं आपके पैर पे पैर रख सकूं? स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने क्या सुख की प्राप्ति? उन्होंने कहा निश्चित तौर पे नहीं। अगर आपके ज़्यादा आप साधन संपन्न हैं, आपके पास ताकत है, तो आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करें तो आपको कौन रोकेगा? तो फिर क्या है जीवन का उद्देश्य? ज्ञान की प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य तपा स्वाध्याय निरितम, जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान का मकसद क्या है? ज्ञान वो है जो मुझे ये बताता है कि मैं दूसरे के अंदर दिव्यता को देखूं। इसीलिए हमारे यहाँ जब आप कॉलेज में अभी आए हैं, अब इसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो हमारी परंपरा में कहा गया तद द्वितीय जन्म, एक जन्म होता है माँ बाप से और दूसरा जन्म होता है जो आध्यात्मिक जन्म है, वो शिक्षा से, ज्ञान से वो आता है। जब आप बच्चे पैदा होते हैं, मैं आज सुबह भी कहीं कह रहा था कि जो उसके सारा प्यार, उसका लगाव, हर चीज़ माँ के लिए होता है। और 2-3 साल 4 साल की उम्र तक भी आपने YouTube पे क्लिप्स देखे होंगे कि जिस वक्त बच्चा माँ की गोद में होता है, बाप भी पास आने की कोशिश करे तो उसे पीछे धकेलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जो करुणा का भाव है, जो प्रेम का भाव है, उसका विस्तार होने लगता है। भारतीय ज्ञान हमें यही बताता है कि योवे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम मस्ति। जितना आप अपने करुणा भाव का, अपने प्यार के भाव का विस्तार करते चले जाएंगे, उतना ही सुख में जीवन आप जी सकते हैं, और उसमें कोई बचता नहीं है। भारत की समृद्धि तो इतनी थी कि दुनिया से लोग आकर्षित होकर यहाँ आते थे। समृद्धि थी तो शक्ति भी रही होगी, शक्ति थी तो क्या कोई इतिहास में है मिसाल कि जहाँ भारत ने किसी दूसरे देश के ऊपर हमला किया हो? ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा अच्छे लोग हैं, नहीं, हमारी संस्कृति हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। अगर हम ये मान रहे हैं कि दूसरे के अंदर दिव्यता मौजूद है, तो आप जाके मंदिर पे, मतलब जिसके अंदर आप दिव्यता देख रहे हैं उस पर आप हमला, जो वो मानता है वो उस पर हमला तो नहीं करेगा। तो असल चीज़ दुनिया में आगे बढ़ने के लिए रियल गेम चेंजर इज एजुकेशन। एजुकेशन ठीक हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी ठीक हो जाएगा। एजुकेशन ठीक हो जाए, अभी एक बच्चे ने, किसी ने केरला की बात की, किस, अब महक ने की, केरला की बात की। केरला में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, सरकार के पास पैसे नहीं हैं, पूरी तरह, मतलब तनख्वाहें देने में सरकार को देर हो जाती है, लेकिन समाज समृद्ध, पूरे देश में प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में टॉप पर है केरला। ना इंडस्ट्री, ना बिजनेस। सरकार की हालत यह है कि सरकार अपने जो काम करने वाले हैं उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं दे पाती,
और समाज में समृद्धि है। क्यों? उनके पास क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है उनके पास, एजुकेशन। उस एजुकेशन ने उनके अंदर ये क्षमता पैदा की है कि दुनिया के हर देश में वो मौजूद है। केरला में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, लेकिन उस एजुकेशन के सहारे उन दुनिया में, पूरी दुनिया में उनके लिए अपॉर्चुनिटी। मैं 5.5 साल रहा वहाँ। मैं सोचता था कि आखिर केरला में इतने पढ़े लिखे लोग, कि जो कुछ होता है राजनीति में, इसको ये कैसे बर्दाश्त करते हैं। फिर मुझे लगा कि ये अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते, ये प्रोटेस्ट में, नारेबाजी करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। उनका तुमने ये दरवाज़ा बंद किया, हमने 4 दरवाजे और खोल लिए अपने लिए। बिहार के लिए मैं एक बात कहता हूँ, मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं, इतना मेहनती आदमी है बिहार का कि वो, उसे यहाँ पे जॉब नहीं है तो केरला जाके नारियल तोड़ने में भी उससे संकोच नहीं होता। हम राजभवन में फ़ोन कराते थे कि भाई हमारे पेड़ों सा एजेंसीज हैं वहाँ कि नारियल तोड़ने के लिए आदमी भेज दीजिए, तो हमें वो मिनिमम 5 दिन का टाइम देते थे। और लोगों को कितना देते हैं, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि साहब 1 हफ्ता लगेगा आदमी को आने में, बुकिंग इतनी ज़्यादा है। और जाहिर है हमें प्रायोरिटी पे भेज रहे हैं। और जब वो आता था तो या तो वो उड़ीसा का होता था या वो बिहार का होता है, कभी कभी ईस्टर्न यूपी का भी कोई नज़र आता। अब ये जाके इन्हें मेहनत का, और क्या मेहनत कर। मैं गया बम्बई ओथ लेने के 3रे दिन बाद, बिहार आने के बाद, तो लोगों ने मुझसे अस्पताल में पहुंचा, तो अस्पताल में तो कोई अस्पताल तो बगैर केरला वालों के चल ही नहीं सकता, ख़ास तौर से बड़े शहरों में। तो वो सब जमा हो गए वहाँ पे। मुझसे कहें, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केरला एंड बिहार? आई सेड आई कांट टेल यू द डिफरेंस, कंपैरिजन्स आर ऑलवेज ओडियस, बट आई कैन टेल यू द सिमिलरिटी। उनका सर सिमिलरिटी क्या है? उनका दुनिया केरला के बगैर नहीं चल सकती और भारत बिहार के बगैर नहीं चल सकता। इतने मेहनती लोग। तो लेकिन एक चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँ, ये बिहारी जब बम्बई में होता है, केरला में होता है, आंध्रा में होता है, कहीं भी होता है, दुनिया में कहीं, ये बिहारी होता है। लेकिन बिहार में दूरबीन लेके तलाश करो तो बिहारी नहीं मिलता। बिहार में वो इस कम्युनिटी का है या इस कम्युनिटी का है, वो इस जाति का है या इस जाति का है, बिहार में बिहारी नहीं मिलता। और मैंने अभी आपसे कहा कि ज्ञान का उद्देश्य है अपने करुणा भाव का लगातार विस्तार करना। हमारे यहाँ अजीब मामला है कि हम पढ़ लिख के उसको संकुचित करते चले जाते हैं। मैं इस बिरादरी का हूँ, मैं इस बिरादरी। अरे भाई, आप जाते हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार होते हैं, तो आप डॉक्टर अपनी बिरादरी का ढूंढते हैं क्या? आपका केस हो अदालत में, आप वकील अपनी बिरादरी का ढूंढते हैं क्या? पॉलिटिशियन को चाहे जो कहिए, पॉलिटिशियन और कुछ भी नहीं है, समाज का प्रतिबिंब है। आज ये उम्मीद मत रखिए, इनफैक्ट कभी भी दुनिया में नहीं हुआ है, स्टेट्समैन लाइक क्वालिटी चंद के अंदर होती हैं। बाकी लोग जो होते हैं सार्वजनिक जीवन में, वो तो दे आर राइट, वो तो जो चीज़ समाज में, वो पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि भीड़ क्या चाहती है, और फिर वही बात कहते हुए उस भीड़ के आगे खड़े हो जाते हैं। उनसे ये आप उम्मीद रखेंगे कि वो आपके लिए कोई वो टेंट सेट करेंगे, ये संभव नहीं। इसलिए समाज में चेतना पैदा करनी पड़ेगी। समाज क्या मांगता है, उस मांग में बदलाव लाना पड़ेगा, और फिर देखिएगा कि राजनेता बिल्कुल वही बात करने लगेंगे जो समाज चाहता है, और उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम नौजवान हमारे ये तय कर लें कि हमें इस परिस्थिति को बदलना है, और बदलने का मामला, मैं आपसे दूसरी बात भी कहता हूँ, आपके यहाँ बदलाव का मामला केरला जैसा नहीं है। केरला में तो इतनी भयंकर स्थिति थी 100 साल पहले कि स्वामी विवेकानंद गए, 3 दिन रुके और चौथे दिन चले आए और कहा ये राज्य नहीं है, ये तो पागल खाना है।
धर्मशाला लफ्ज इस्तेमाल किया था। क्यों? कि वहां तो 40% से ज्यादा महिलाएं अपर गारमेंट नहीं पहन सकती थी। सिर्फ अनटचेबिलिटी नहीं थी, अनसीएबिलिटी थी। कुछ कम्युनिटीज के लोग थे जिनको ये इजाजत नहीं थी कि जब तक सूरज निकला हुआ हो वो बाहर निकल के आ जाए। लेकिन आज क्या हालत है केरला की? आज हालत ये है कि मेरे जो भी मेहमान यूपी और बिहार से खास तौर से आते थे केरला, मैं हाथ जोड़ कर उनसे कहता था, जिस टोन में ऑफिसर से बात करना उसी टोन में माली से बात करना। यहाँ का आदमी ये स्वीकार नहीं करेगा, वो चाहे जो काम कर रहा हो, पियून हो, मगर वो इज्जत चाहता है कि इज्जत के साथ इज्जत चाहता है। रॉबस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी। तो मैंने एक दिन चीफ सेक्रेटरी से कहा, वो मिलने आए, तो मैंने कहा मैं देख के बड़ा अच्छा लगता है केरला में क्या रॉबस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है। तो वो कहने लगे मुझसे, चीफ सेक्रेटरी विश्वास मेहता जी राजस्थान के थे, अब तो रिटायर हो गए। मुझसे कहने लगे, सर मैं आपको पिछले हफ्ते का बताता हूँ, मेरे ड्राइवर ने मुझसे क्या कहा। ये क्या कहा? बोले मेरा ड्राइवर मुझसे कहता है अंग्रेजी में, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? What is the difference between you and me? I did not choose to write IAS examination. हाँ, उसने कहा I love my job. भाई हमारे काम अलग अलग हैं। मैं गवर्नर हूँ तो मैं कुछ मेरे कुछ क्या कहते हैं वो काहे के पर होते, सुरखाब के पर थोड़ी लग गए। एक आदमी मेरे दफ्तर में जो बेचारा दरवाज़ा खोलता है वो कम कैसे हो गया? ह्यूमन डिग्निटी तो बराबर है दोनों की। और हमारे आदि शंकर ने क्या खूबसूरत बात कही है, का एताव उपाधि पराजीवा योत्से सम्यंग निराशे न परो न जीवा, राजसे नरेंद्र से भट्ट से खेटका स्तयोर पोहे न भटो न राजा। वो कहते हैं परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं, अनल हक, कोई हक नहीं। अगर आप समदृष्टि पैदा कर लीजिए, और वो उसका मिसाल देते हैं, उपमा देते हैं कि जैसे राज्य होता है उसमें राजा होता है नरेंद्र, भट्ट से खेटका, और उसका दरबान होता है। दोनों की वर्दी उतरवा दो और दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दो, दोनों के जो टाइटल हैं वो ख़त्म कर दो और दोनों को बराबर बराबर खड़ा कर दो, और फिर लोगों से पूछो कि कौन राजा है और कौन दरबान। कोई फर्क नहीं होता है, ये सिर्फ काम अलग होते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे कहने में ज़रा भी हिचक नहीं हो रही है। जब कोई आके मुझे हुजूर कहता है तो मैं अनईजी फील करता हूँ। लेकिन यहाँ तो पता चला कि कोई भी ऑफिशियल पोजीशन में हो उसको हर आदमी हुजूर कहता है। अरे भाई, हैव सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। मैं किसी से ज्यादा हूं लेकिन मैं किसी से कम भी नहीं। इसके लिए हमें चेतना पैदा करनी पड़ेगी। और उसकी क्या कहते हैं, की को कुंजी चाबी, क्या की चाबी, उसकी चाबी एक ही है, वो है एजुकेशन। और उस एजुकेशन को हासिल करके समाज में चेतना पैदा करना। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।